Good afternoon. Look at the problem number 5. Page number 79. Page number 79 from HSC board. Problem number 5. Here we have given receipt and payment account. Okay. Out of this you have to draw income and expense account. बोलते समय ऐसे बोलना है इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, बट स्टार्टिंग कहाँ से होगा? एक्सपेंडिचर एंड इनकम. राइट दिस कोलैबोरेटिव. ऐसे क्यों उल्टा किया है ये? डेबिट एक्सपेंस लॉसेस क्रेडिट इनकम एंड गेन्स. रिसीव एंड पेमेंट के डेबिट बैंक अकाउंट. रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट बैंक अकाउंट. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, इसको कुछ एडजस्टमेंट दिया है आपको. हाँ, given 4 options are there. Okay, you have to make tick mark for it. Outstanding rent, make tick mark for rent. अभी रेंट दो दिया है यहाँ पे 1819 और 1920. तो करंट ईयर कौन सा है बताओ. Which is our current year? करंट ईयर कितना है? 20. जब 20 ला हे क्लोज होगा सेल बुक्स तो 19 ला स्टार्ट होगा. 1920 is our current year and 1819 is last year. You have to analyze year first. Okay, first understand the year. Which is current year, which is last year, and which is next year. Next year 2021 is the next year. Okay, first you have to consider this. Now here 1890 is last year and current year 1920. So adjustment, whenever you do adjustments, okay, now look at the adjustment one. Outstanding rent for the year, current year. They have mentioned current year. Means this adjustment related to 1920. Make tick mark to it. 1920. आपको 1920 को टिक मार्क करना है. Next, 60% interest fees should be capitalized. Then here is the interest fees. Such it of receipt side. Last term. Interest fees. Okay. Make tick mark to it. Outstanding subscription for current year. Again current year subscription. Here we have received 3 years of subscription on receipt side. रिसीट साइड का मतलब क्या है? इतने पैसे आए हैं. ऑलरेडी वी हैव रिसीव्ड अमाउंट. ओके, सो फॉर लास्ट ईयर 1890 वी हैव रिसीव्ड 15000. फॉर करंट ईयर 1920 वी हैव रिसीव्ड 1 lakh. नाउ टेल मी व्हिच इज करंट ईयर हियर? एंड फॉर करंट ईयर हाउ मच अमाउंट वी गॉट? 1 lakh. एंड नेक्स्ट ईयर 8000. 2021 for next year. Okay, we have received this amount. So if suppose they have given outstanding subscription for current year, so for which you will do tick mark 1920 current year. Okay, then prepaid insurance. Where is the insurance? On payment side, item number 4. Make tick mark to it. Insurance क्या tick mark? Okay, done with the adjustment. Now come to the receipt side. उठो सर, receipt side में आ जाओ. उठो आगे के receipt side में. Okay, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. इट इज द ओपनिंग कैश बैलेंस. ये आपके लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में ओपनिंग में आएगा. असेट साइड में लास्ट ईयर का बैलेंस शीट का जो रहता है, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जो अमाउंट रहता है वो करंट ईयर के लिए ओपनिंग रहता है. समझ में आ रहा है? लास्ट ईयर का बैलेंस शीट का जो भी आइटम रहता है वो करंट ईयर के लिए क्या रहता है? ओपनिंग रहता है. तो ये जो कैश बैलेंस है, ओपनिंग कैश बैलेंस, ये हम कहीं पे नहीं लेते. उसको सर्कल करो, अमाउंट को सर्कल करना. 29,200 को सर्कल करो. ये हम कहीं पे नहीं लेंगे करंट ईयर में, because this is opening balance. Okay, and after that we got some amount throughout the year as a subscription, as a donation, as a interest fees. Okay, and by adding this all amount we got 2,70,000 in our hand. Out of this we have paid some expenses like a rent, Sunday space, insurance, and we have deposited some amount. We have made some investment. Okay, cash goes out. By deducting this cash from 2,70,000 we got closing balance, that is 15,000 and 16,000. Okay, so this should we show in
क्लोजिंग बैलेंस शीट फॉर करंट ईयर वी विल प्रिपेयर वन मोर बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट उसमें हम दिखाएंगे वी शो दिस ऑन एसेट साइड क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस कहीं भी नहीं लेना उसको सर्कल करो छोड़ दो ओके देन सब्सक्रिप्शन नाउ टेल मी they have given subscription for 18 19 what does it mean हां लास्ट ईयर में क्या हुआ है हां ड्यू है मिला है क्या हुआ क्या मिल गया वी हैव रिसीव्ड रिसीव साइड में पैसे आ गए तो रूल क्या बोलता है इस साल का खर्चा इस साल में दिखाओ इस साल का इनकम इसी साल में दिखाओ यू हैव टू शो ओनली करंट ईयर इनकम इन करंट ईयर इनकम डिस्प्ले अकाउंट ओके सो हियर वी हैव रिसीव्ड पेमेंट फॉर लास्ट ईयर मेक सर्कल टू इट विल नेवर कम एनीवेयर ये कहीं भी नहीं आएगा 15 को गोल करा तो कुछ देना नहीं बिकॉज़ इट इज द लास्ट ईयर मुझे बताओ अगर इसको आप बैलेंस में लेने का सोच रहे हो मैंने क्या बताया इसको इंक्रीमेंट में दिखाना नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर का हम इसको करंट ईयर का दिखाना है अगर आप ऐसे में इसको बैलेंस शीट में कहां जाता है क्या तो मुझे बताओ इज दिस रिसीवेबल अमाउंट नहीं ये एक्चुअली रिसीव्ड आपको मिल गया है सो इट इज नॉट रिसीवेबल इट इज पेएबल इज दिस पेएबल नो सो इट विल नेवर कम टू बैलेंस शीट नहीं आएगा इसको सर्कल कर छोड़ दो देन नेक्स्ट 1920 is the current year's income so we have to show it on income side by subscription तुम्हारा करंट ईयर इनकम में आ रहा है 1 लाख रुपए ओके तो तुम्हें दाखवा ऐसे इनकम रहेगा बोलिए तो इट है इन्वेस्टमेंट इसको एडजस्टमेंट है एमबीसी में एक आधा डाल के रखो सब जन हम फाइनल पर क्या करते थे टिक करके रखते थे और बाद में एक में एडजस्टमेंट करते थे यहां पे क्या करना है सेम टाइम में एडजस्टमेंट करके खत्म करना है तब आपको ज्यादा इजी लगेगा प्रॉब्लम एमबीसी का ओके तो देखो 1920 का जो एडजस्टमेंट दिया है 1 लाख रुपए हमारा करंट ईयर का इनकम मिल गया है हमको ओके इससे रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट देखो आगे एडजस्टमेंट नंबर 3 आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 20000 मींस व्हाट अभी भी 20000 स्टिल रिसीवेबल है स्टिल ड्यू है मिलना बाकी है रूल क्या बोलता है इस साल का इनकम इसी साल में दिखाओ तो मिला नहीं है मिलना चाहिए and outstanding for current year what is the amount 20000 इतना याद रखना है आपको करंट ईयर का इनकम करंट ईयर में दिखना चाहिए इवन इट हैज नॉट रिसीव्ड अगर वो मिला भी नहीं है इवन यू हैव टू शो इट इवन यू हैव नॉट गेट इट आपको मिला नहीं है दिखाओ ऐड करो ओके डन अरे आप सोचिए कि इसका सेकंड लिमिट्स वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड बैलेंस शीट लीव इट जब बैलेंस बनाएंगे तो हम सोचेंगे नेक्स्ट 2020-21 का जो सबसे मिला है इसका मतलब क्या है प्री रिसीव्ड एडवांस में मिला है ओके तो मुझे बताओ एडवांस में जो मिला है हमको ये 8,000 ये यहां पे दिखेगा क्या नहीं दिखेगा नहीं लेस भी नहीं होगा क्यों क्यों एग्जैक्टली अगर ये 1,000 उन्होंने इंक्लूड वगैरह दिया होता ब्रैकेट में वगैरह दिया होता वो इसमें इंक्लूड है तो हम लेस कर देते बट दे आर गिवन सेपरेट उन्होंने तीनों भी सेपरेट दिया है तो जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस में मिला है प्री रिसीव्ड 8,000 तो ये कहां पे जाएगा लायबिलिटी में जाएगा ओके बट वी हैव प्रिपेयर्ड बैलेंस लायबिलिटी क्यों जाएगा बिकॉज़ इट इज रिसीव्ड इन एडवांस वी आर पेएबल टू देम ओके सो इट इज अ लायबिलिटी नॉट करंट ईयर इनकम तो इसलिए लायबिलिटी में जाएगा अदरवाइज यहां पे लेना नहीं है नेक्स्ट डोनेशंस वी हैव रिसीव्ड 25,000 एज डोनेशन एंड आगे दे हैव मेंशन्ड जनरल अगर यहां पे कैपिटलाइज दिया होता तो हम इसको कैपिटल फंड में ऐड कर देते कहीं कहीं पे कैपिटल बोल के दिया जाता है ओके तो हम इसको क्या करते हैं कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं तो डोनेशन 25,000 वी हैव रिसीव्ड इट इज आल्सो इनकम उसका एडजस्टमेंट कितना है डोनेशन जनरल है ना नेक्स्ट इंटरेस्ट फीस they told 50% of interest is capitalized मतलब इंटरेस्ट फी जो आपको मिला है उसका 50% जो है वो आपको कैपिटल फंड में ऐड करना है ठीक है इसका मतलब क्या क्यों 50% कैपिटल फंड में ऐड करते हो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट सोचो इंटरेस्ट फी टोटल हाउ मच इज दिस
15,000. ओके 60% हैज टू कैपिटलाइज्ड. क्यों कैपिटलाइज करते हैं? दो टाइप के इंटरेस्ट देते हैं. ये फर्म कौन सा है, क्या करते हैं? कल्चरल एसोसिएशन है. दो टाइप का इंटरेस्ट भी रहता है. जोर से बोल. जय माता दी. आप बोलिए वाले. कैपिटलाइज करना मतलब कैपिटल में ऐड करना. ये इंटरेस्ट फीस दो तरीके से मिलते हैं फर्म को. एक मिलता है इंटरेस्ट फीस मेंबर के थ्रू. अगर कोई नया मेंबर एंटर कर रहा है अपने क्लब में, न्यू मेंबर इज एंटरिंग इन आवर क्लब, ओके, ही हैज टू पे सब्सक्रिप्शन थ्रू द इयर्स. बट एट इनिशियल स्टेज some firms, some clubs are there who collect interest fees from members. एक ही बार लाइफ में एक ही बार कलेक्ट किया जाता है मेंबर्स से जो कलेक्ट किया जाता है. ओके, एंड समटाइम्स दे ऑर्गेनाइज सम कंपटीशन, सम cultural club is there, isn't it? So they will organize some competition, okay, and then they collect interest fees from players. This is interest fees different. वो interest fees अलग है. Okay, अगर suppose they haven't given any information regarding interest fees, now it's your choice. You can add it in capital fund, otherwise you can show as a nominal income, general income. Okay, so whatever you assume, you have to make a note for that. You have to write a note. आपको note लिखने बोला है, note लिखना ही है आपको कंपल्सरी पीछे कि what you have assumed here. आपने यहाँ पे क्या सोच के किया है अकाउंटिंग. ओके, तुम्हारा नोट लिखा लगता है. सो हियर दे हैव डायरेक्टली गिवन एडजस्टमेंट. उन्होंने डायरेक्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है. मैंने एक बार नोट कब लिखना है आपको? इफ सपोज एनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल देयर रिगार्डिंग इंटरेस्ट फीस, एडमिशन फीस, ये दोनों चीजों के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं दी है, व्हाट यू हैव टू डू? अगर दोनों इसके बारे में जानकारी नहीं दी तो आपको क्या करना है? नोट लिखना है. आपने क्या वहां पे एज्यूम किया? बेस्ट एक तो एक ही फॉलो करो रूल. आप क्या करो? इनकम साइड में ही ले लो इंटरेस्ट फीस हमेशा, अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो. ओके, सो अभी यहाँ पे 60% इंटरेस्ट फीस क्या करना है? कैपिटलाइज करना है. हाउ मच इट विल बी? कितना है? 15 का हाफ. 50% मतलब 7,500 रहता है. हाफ, इट इज मोर देन हाफ ना. 60% और 10% ऐड करो उसमें. 7,500 प्लस 1,500 9,000. आपको समझ में है? कैपिटलाइज करने में बोलते हैं मतलब कैपिटल फंड में ऐड करते हैं. तो यहाँ पे कैपिटल फंड हमने वो बैलेंस शीट बनाई नहीं है, तो छोड़ दो, कैपिटल में ऐड करना. लेकिन जब भी आपको कैपिटलाइज कुछ बोलते करेंगे तो आपको लेस करना है उसमें से. ओके, मतलब आधा ये जो इनकम है ये कैपिटल इनकम बोलते समझो, और ये जो इनकम है ये आपका रेवेन्यू इनकम 6,000. सो वी विल शो ओनली रेवेन्यू इनकम इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो यही दिखाएंगे हम. ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट. देखो हमने फिक्स्ड डिपॉजिट रखा हुआ था, उस पे हमको इंटरेस्ट मिला है. था जनरल इनकम. इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट सर ये ऐसे शॉर्टकट. देखो अभी जैसे मैंने शॉर्टकट यूज किया ना, ऐसे बिल्कुल शॉर्टकट यूज नहीं करना है आपको. क्यों? मार्क्स कट हो जाएंगे. आउट ऑफ नहीं देंगे आपको, 100% नहीं देंगे, 99 देंगे. तो जो ग्लैमर है 100 है ना, वो 99 में नहीं है. ऐसे हमारे तरफ टीचर बुरी बोलते हैं. नाम नहीं ले सकता, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, पब्लिसिटी हो जाएगी. जो ग्लैमर 100 में है वो 99 में नहीं. इसलिए छोटी छोटी चीजें आपको थोड़ा सा क्लियर करो. पिकनिक रिसीट. अभी देखो ये जो कल्चरल क्लब थोड़ा सा पिकनिक वगैरह हम लेके जा रहे हैं बच्चों का. ओके, तो उसके हम कुछ पैसे कलेक्ट किए, 20,000 रुपीस कलेक्ट हुआ है. इट इज एन इनकम फॉर अस बाय पिकनिक. अभी पिकनिक के पैसे लिए हैं, मतलब गए होंगे पिकनिक को, इसमें से कुछ पैसा खर्चा किया होगा. देखो खर्चा किया है कि नहीं पेमेंट साइड में.
तो पिकनिक रिसीव रहने दो, या तो और टूर्नामेंट रिसीव टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ओके, रिफ्रेशमेंट रिसीव रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, ऐसे कुछ रहते हैं जो इनकम देता है और एक्सपेंसेस देता है। तो अब क्या करो, जो एक्सपेंसेस है यहाँ ये भी लेस कर दो, लेस पिकनिक एक्सपेंसेस। अगर आपको लगता है हमें यहाँ भी दिखाएंगे सर पिकनिक एक्सपेंसेस और इस तरह हमारा दिखाएंगे दिखाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो आउट ऑफ मार्क करेंगे, ओके। कैलकुलेशन करो, पिकनिक एक्सपेंसेस कितना है यहाँ पे 18,000, is a surplus for us. Okay. Now, any doubt regarding receipt side? कुछ doubt receipt side में कुछ doubt है? देखो आप और एक बार receipt side में कुछ doubt है तो पूछ लो. मुझे पूछना कुछ doubt है? रिसीव का पेमेंट तो दिया है पर उधर इधर डेबिट क्यों दिया है? उधर ऐसे उल्टा क्यों नहीं लिखा है? उल्टा क्यों लिखी? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट को दो. ए आप मामला को पता करो इसको. इट इज कैश अकाउंट, रियल अकाउंट. मैंने शुरुआत में बोला था कल. भूल गए? दिस इज व्हाट इज द रियल अकाउंट. डेबिट कम्स इन क्रेडिट को दो. पैसा आया पैसा गया. हाँ, अगर आप इसको पेमेंट को खर्चा बोल रहे हो, खर्चा समझ रहे हो, तो क्या होगा? तो यहाँ खर्चा है कि देखो एफडी है उसमें, वो खर्चा है, फिर तो उसको रूल है अप्लाई होगा अपना नॉमिनल का. पेमेंट साइड में आ जाओ. नाउ रेंट. नाउ टेल मी व्हाट अबाउट 18-19? लास्ट ईयर का रेंट हमने इस साल करंट ईयर में क्या किया है? पे किया है. वी हैव पेड. पेमेंट साइड में है ना अमाउंट. वी हैव पेड लास्ट ईयर रेंट इन करंट ईयर. तो ये कहाँ पे लिखेगा अपना? कहाँ पे लिखेगा? इधर भी नहीं लिखेगा, इसको सर्कल करो. कितने होशियार, फक्त सातशेला सर्कल करा. त्याच्यामध्ये लिस्ट होतो 55,000 दिलेली आपला. त्याचं काय 55,000 भरती दोघांचे टोटल आहे 55,000. 700 ला बंद करा. ओके, 700 को सर्कल करो. देन नेक्स्ट 2019-20 एस आपस में डिस्कशन करो. 1920 जो करंट ईयर का रेट है वो हमने करंट में पे किया है. तो करंट का एक्सपेंस हम करंट में दिखाएंगे, उसको लिखवा देना टू रेंट. अब मैं इस द अमाउंट 54,300. Okay, and then regarding arrangement, what is the arrangement regarding it? Outstanding rate for current year 7,000 is outstanding. Add होगा या less होगा? Outstanding means what? Not paid. Not paid means still due. Is it still due? अगर इसमें उल्टा होता तो क्या? इसका उल्टा मतलब prepaid. हाँ. Less होगा. क्योंकि आगे का साल का इस समय हमने करंट एडवांस में पे किया है. जब एडवांस में पे किया तो दिखाओगे उसमें. तो दिखाना नहीं है लेस करो. मला कोणाला करण्याचा रेट मिळाला असं रिसीव झालं. हे पहिली येणार इमिडिएट रिसीव. इन्कम ते तिथे रिसीव मध्ये आहे. आणि त्याने जर का प्रीपेड दिला असतं तर मला लेस करून ते पुन्हा सांगतो मी तुम्हाला. लास्ट ईयर का लास्ट ईयर एडवांस पे तो इस साल में दिखाना पड़ेगा आपको. ऐड करके दिखाएंगे. उसका एक फॉर्मेट बना के देता हूं मैं आपको. देखो आप आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या करते हो? ऐड करते हो हमेशा. अगर लास्ट ईयर का रहा तो लेस हो जाएगा. इंक्लूड आप. और प्रीपेड क्या करते हो? प्रीपेड रहने दो, प्री रिसीव रहने दो. अगर लास्ट ईयर का रहा तो ऐड करो. क्योंकि लास्ट ईयर का प्रीपेड मतलब इस साल का हुआ तो दिखाना चाहिए. ऐड करके दिखाएंगे. बैलेंस शीट में दिखाएंगे. बैलेंस शीट में कौन दिखाते हैं? If it is due, if it is receivable or payable, then and then we can show it. Otherwise not. Now look at the rent. By rent they have shown 700 for last year. We have paid in current year. Hence it is not expensive for current year. We will not show it. But again they have mentioned in the attachment for current year 7,000 is due. Then what we should do? We should do add
आउटस्टैंडिंग इट इज ड्यू मींस वी हैव नॉट पेड सो वी हैव नॉट शोन अगर पे किया तो यहाँ पे आ जाता था रिसीवर पेमेंट अकाउंट में पे नहीं किया तो दिखाई नहीं है तो दिखाई नहीं तो आगे कैसे दिखाओ आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 7000 61,300 then fixed deposit asset any type of deposit कुछ भी deposit है तो deposit for power meter deposit for MSCB deposit with MSCB स्कोप तो देते deposit asset में जाएगा सीधा तो हमने बैलेंस बनाया नहीं है लेना ही नहीं then certain expenses normal expenses general expenses मान लेते हैं certain expenses को it is a revenue type of expenditure चाय पानी नाश्ता insurance again insurance is a general expenses you have to pay yearly 12,000 now look at the estimate what they are given prepaid insurance 1,000 insurance advance में पे किया है मतलब इसमें include है एडवांस में पे किया तो इसमें include है तो हम दिखा सकते हैं क्या नहीं दिखा सकते हम प्रीपेड नहीं दिखा सकते तो लेस करो इसमें से लेस प्रीपेड और फिर ये asset में चला जाएगा। हां फिर ऐसे में जाएगा नेक्स्ट Printing and stationery. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6000 जनरल एक्सपेंसेस कॉमन एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6000 पिकनिक एक्सपेंसेस डन पिकनिक एक्सपेंसेस में पिकनिक एक्सपेंसेस हमने लेस किया है सैलरीज ठीक है अपने पिकनिक एक्सपेंसेस लेस करेंगे इनकम पिकनिक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस समय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इट इज आल्सो जनरल एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस दोबारा किया जाने वाला खर्चा है 30,000 बाय एडवर्टाइजमेंट 18-19 लास्ट ईयर का है तो कंट्री में नहीं दिखेगा ओके और बैलेंस शीट जो बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस कैश का बैलेंस कैश इन हैंड कैश इन बैंक ये भी नाउ सारे एस्टिमेट हो गए देखो look at the all estimate whether we have done or not and then close it ये कैसे क्लोज होगा एक ओवरली टोटल करना है पहले सबसे पहले किधर का ज्यादा होता है लेजर जैसे क्लोज करते हैं वैसे क्लोज करना है 145 151 155 800 157 800 आते हैं क्या टोटल 157 800 नहीं 175,800 हाँ 175 800 अरे 175 800 हाँ मेरा अलग ही रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे रिसीट एक्सपेंस कितने एक्सपेंस माइनस किया उसमें माइनस किया है पिकनिक एक्सपेंसेस वगैरह तो माइनस किया था इनकम साइड का नहीं हाँ तो डिफरेंस आएगा लेकिन चलेगा ये भी चलेगा वो भी चलेगा मैंने दोनों भी ऑप्शन रखा है मेरा अलग रहेगा और आपका 15 का एक 157 डिफरेंस कितना है कब देना है डिफरेंस सरप्लस कितना है 3500 it is known as the true surplus that is expenses for excess of income over expenditure. over expenditure